ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜੇਮਸ ਕੈਮਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 10 ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। I pay my regards to Honorable SSP Hoshiarpur Shri Surinder Lamba ji IPS, and I extend my heartiest congratulations to the school management for organizing such a good function, such a knowledgeable function for children, and I also congratulate children for performing so well, giving such a good performance. We truly admire. So I am here to share some traffic rules about giving you traffic instructions which are very important to follow when we step on the road. So firstly, it is very important to know that underage children below the age of 18 are not supposed to drive, because there is so much traffic. The law has to take care of it. If someone drives underage a bike or car, then the parents are liable to fine of 25,000 rupees and 3 years punishment in the jail. So if you borrow someone's vehicle, your friends, some overage friend, some of your relatives, then that relative or friend of yours is liable to fine and 3 years punishment in the jail. So this is very important. It is because of your own well-being that you shouldn't drive being underage. And once you reach a certain age, you become 18 adult, then you should take care of the things that you shouldn't overspeed, you shouldn't you should take care of the other traffic on the road. That traffic includes the pedestrians, the animals, the herds, the processions, and everything you come along on the road. That includes traffic. We should take care of it. It isn't like that the person who is driving, only that person is supposed to go through the road. The animals, the old elderly people, the pedestrians, they are to be given more importance than us who are riding the vehicle. We should stop while we are seeing zebra crossing, and at the same time the traffic lights are there. We should slow down our vehicle and should take notice of it, that what the traffic light is instructing, we are supposed to go right, left, which light is indicating our movement. Despite of that, the rules we are following, there are laws about strict laws about over speeding, light jumping. Whenever you come across policeman, he is directing you to stop for any kind of diversion. We should abide by the person directing us, the policeman directing us, because they are working so hard just for your good management on the road, the traffic management on the road. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। I would also like to give some instructions regarding being a children you should be aware of. So drugs, we start from the fun. We start from little alcoholic beverages which give us high energy. Then we switch to, with time as we grow, under some kind of peer pressure. Peer pressure, you know peer pressure. What is peer pressure? आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि आपका कोई दोस्त होता है, उसने वंस ही और शी मस्ट हैव ट्राइड समथिंग, ये तो बहुत अच्छा होता है, इससे कुछ नहीं होता, इससे एनर्जी मिलती है, या फिर इससे बस थोड़ी सी किक मिलती है, इसे ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता इससे, ये ड्रिंक नहीं होता है, ये अल्कोहल नहीं होता।
यहाँ से बात शुरू होती है। फिर आगे आगे शुरू करते करते हम क्या करते हैं कि उसके अंडर पीयर प्रेशर, हमारे दोस्त पी रहे हैं तो हम भी पी लेते हैं, दोस्त खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं। सो वहां से बात शुरू होती है फन से, गुड टाइम से। तो बात कहाँ तक जाती है, ये जो ड्रग्स हैं हमें खुद को हैंडीकैप कर देते हैं। एक पर्सन को साइकोलॉजिकली, इमोशनली उसे डिपेंडेंट बना देते हैं उस चीज पे, उस ड्रग पे, कि हमें पता ही नहीं चलता, हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। कभी आप सोच सकते हैं खुद को नुकसान पहुंचाना? तो हम खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं ड्रग के साथ, हमारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? हम कुछ कर नहीं रहे होते, हमें कोई डायरेक्शन नहीं होती कि हमने लाइफ में क्या करना है। सो इस तरह से जो ड्रग्स हैं हमें खुद को खत्म करती हैं, एज हमारी पर्सनालिटी को खत्म करके हमारी लाइफ को इंडेंजर करती हैं। सो कोई भी चीज हो, जो आपकी गुड डाइट, आपके पेरेंट्स सब स्ट्रेस करते होंगे कि आपको गुड डाइट लेनी चाहिए, तो आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन सी नई चीज है जो आपके दोस्त आपको बता रहे हैं, और आपको बिल्कुल भी वो नहीं यूज करनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, तो कभी भी आप हमें इन्वॉल्व कर सकते हो किसी भी चीज की अगर दिक्कत हो तो। थैंक यू। Sir, I'm Asmi Verma from grade 7A, and I wanted to ask that why isn't there so much of traffic light implementation on our roads? Because I have went abroad and there I saw the traffic went so smoothly. In the whole of 7 days, I didn't hear any car honk. The traffic went so smoothly because there were traffic lights and the people never skipped them. It was like they would go to jail if they skipped them. So why isn't the same in India? Why can't we make our country better than them? So I wanted to ask this. Sir, my feedback is that sometimes people skip the traffic lights, they do not see them. Like sometimes I have seen that. And on the roads there are sometimes a lot of bumps and the little pit holes that could cause accidents. So they should be filled, and that's all about my feedback. Very nice. Thank you, Sir. sir. Next, please. Many times that if police stops any person, they give money and leave them. Yes, yes, बिल्कुल ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? Sir, the money should be confiscated. हाँ जी, sorry. Sir, money should be confiscated. Confiscated. Yes, बिल्कुल ठीक है। Sir, like some people say that underage and 18 people can drive on cannot drive on roads. None like I have seen some people, they are driving in their villages. So it is allowed to drive. Say that only in DC road there is a cycle path. So on every road there should be cycle path, like just like in Chandigarh, we see that there everywhere is a cycling path. I would recommend that. Usually they are like they are without helmet or they are disobeying the traffic rules. Isn't that like big offense than other citizens? Also, like it's it's not their allowed to duty. anyone. It is not allowed to Yeah. anyone. Yes. वो भी आप ही लोगों के घर से आते हैं। बैठो बैठो। Good afternoon, sir. Sir, I have seen police officers crossing red light. बिल्कुल ठीक है। यस, आप करते हो? आप ही बताओ ना, आप करते हो नहीं करते? Sir, I don't drive car. तो आप घर वालों के साथ जब जाते हो, पेरेंट्स के साथ, वो करते हैं रोड रेड लाइट जाते? No, sir. कभी नहीं किया आपके उसने? No, sir. आप करने देते जाते हो? पता नहीं. Good afternoon, sir. So the question is that in Hoshiarpur there are very less zebra crossings. Most of the time people cross the road from anywhere. So It is everywhere in the country, not in Hoshiarpur. You expect zebra crossing? Students of my age from class 10, 11, 12.
we are obliged to go to institutions that are far away from our house, which are 5 to 6 to 7 kilometers away from our house. We are forced to travel on vehicles. So can you please introduce a better alternatives for us? Like आपका स्कूल आपके घर से बहुत दूर है and you are forced to come on your own vehicles. No, I'm not talking about us. I'm talking about the tuitions, the institutions. The institution means the school. You are talking about the school. Yes, sir. स्कूल आपके घर से बहुत दूर है, वहाँ पे स्कूल बस नहीं जाती है, आपको अपने व्हीकल से आना पड़ता है. I'm talking about the country as a whole, not about about all the students around the country. Yes, better. So sir, like in Hoshiarpur also and other cities like a whole of India, so they are parking their vehicles on the sides of the busy roads. So sometimes accidents can happen because of the blockage of the road. So sir, what measures can we take to solve that problem? ट्रैफिक रूल्स पहले भी थे, अभी थोड़ा सा और ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है. ट्रैफिक रूल्स के पीछे जो मोटिव है, आप समझे बात को. See, we are the present of the country, you are the future of the country. And आप सभी लोगों की सेफ्टी. फ्यूचर ऑफ द कंट्री मीन्स आप में से ही आगे चल के कोई टीचर बनने वाला है, कोई ब्यूरोक्रेट बनने वाला है, पुलिस ऑफिसर बनने वाला है, कोई बिजनेसमैन बनने वाला है, एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा. वो ही अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम ही सभी लोगों का एक पर्टिकुलर रेशियो टाइप में जो हमारा चलता है सोसाइटी में, उसी रेशियो में सभी लोगों ने आगे बढ़ना है और सभी लोगों ने कुछ ना कुछ फील्ड में जाके काम करना. सो दैट वे वी कॉल यू एज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. हर एक इंडिविजुअल की लाइफ, मुझे लगता है कि जब हम स्कूल में होते हैं या इवन आप आज भी देखेंगे, जो रोड साइड रैश ड्राइविंग करने वाला बंदा है, वो रैश ड्राइविंग इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको पता कुछ नहीं है. मुझे ये लगता है कि वो रोड ड्राइविंग रैश ड्राइविंग इसलिए कर रहा है कि ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट वर्थ ऑफ हिज लाइफ. ही इज नॉट कॉन्शियस अबाउट the challenges he is going to face or the danger he is going to face due to the rash driving or violating the traffic rules. First thing. Second thing, खुद की लाइफ के साथ साथ वो दूसरे की लाइफ की वर्थ भी नहीं पहचान पा रहा है कि इसकी लाइफ की वर्थ क्या है. अगर ये इसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है या बाइक से एक्सीडेंट होता है, किसी की जान चली जाती है, तो मैं कितना बड़ा लॉस किसी की फैमिली को, किसी इंडिविजुअल को और पूरी एज ए होल पूरी कंट्री को करना. जब हम इस बारे में अगर कॉन्शियस होंगे कि आप अपनी लाइफ की वर्थ समझ पाएंगे कि योर लाइफ इज प्रीशियस, तो आई फील कि आप सब कुछ फॉलो करेंगे जो भी रूल्स जो हमें डायरेक्ट किए जाते हैं. तो ये क्रक्स है पूरे लेक्चर का जो हम बात करने जा रहे हैं, पूरे इंटरेक्शन का, कि ट्रैफिक के रिगार्डिंग क्यों. आप ये देखें कि हमारी लाइफ का मोटा मोटा हाफ नहीं तो 1/3 पार्ट पूरी लाइफ का आप कैलकुलेट करें. स्कूल आना, स्कूल से वापस जाना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन से घर जाना, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मार्केट और सारे काम करने के लिए जाना. तो हम ऑलमोस्ट जो हमारा वर्किंग आवर्स है उसका 1/3 टाइम रोड पे स्पेंड करते हैं. जहां हम ऑफिस में बैठते हैं वहां एसी लगे हैं, जहाँ हम बिजनेस करते हैं वहाँ अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ सारा आपका टेक केयर किया जा रहा है, जहाँ आप घर पे रह रहे हैं वहाँ सारा एवरीथिंग इज वेल मैनेज्ड एंड एवरीथिंग इज वेरी मच सिक्योर. पर जो 1/3 पार्ट वाला जो पोर्शन है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज मिसिंग देयर एंड द कॉन्शियसनेस अबाउट दैट इज ऑल्सो मिसिंग. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यू एग्री विद दिस? घर में आप सुरक्षित हैं, आप स्कूल में आप सुरक्षित, बट जब आप घर से स्कूल और स्कूल से घर आ रहे हैं, रोड्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, रोड्स आर नॉट सेफ बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय डिजाइन. उसके बाद में जैसे किसी ने ट्रैफिक लाइट की बात की, कहीं खड्डे हैं, कहीं और इश्यूज हैं, फर्स्ट इश्यू. सेकंड, जो रोड के ऊपर ट्रैवलर है, ही इज नॉट
conscious about his safety, he is not conscious about other safety. तो दोनों मतलब जिसको कहते हैं ना कहानी की सोने पे सुहागा हो गया कि पहले तो रोड खराब थी, ऊपर से चलाने वाला भी ऐसा आ गया जिसको इस चीज की फिक्र नहीं है कि क्या करना है। तो दोनों जब मिक्स हो गए तो ठीक हो गया। एक कोई राइडर या ड्राइवर कह रहा है कि जी मैं बिल्कुल 100% रूल फॉलो करता हूँ, बट देन अगेन ही मेट्स एन एक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रहा है, दूसरा वाला नहीं कर रहा, वो उसके अंदर आके रूल कर रहा है। तो यू हैव टू सेव योरसेल्फ आल्सो फ्रॉम अदर्स, कि जो दूसरा रैश ड्राइविंग कर रहा है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है इन तरीके की सर्कमस्टेंसेस में। जैसे एक बच्चे ने बताया कि बाहर जब जाते हैं विदेश में तो सभी लोग, कोई हॉन्क नहीं करता, कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं करता, सारे लोग लेन सिस्टम फॉलो करते हैं। वही जो बात आप बाहर की बताइए, वही सारे जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके अंदर सजेस्टेड है ट्रैफिक रेगुलेशंस के नाम से कि ये सारे फॉलो करने। बट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल टेक टाइम। अब आप खुद की सेफ्टी के लिए ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं हेलमेट उस दिन पहन के जाऊंगा जिस दिन रोड पे कहीं खड्डे नहीं होंगे। कैन यू से दैट? ना, क्योंकि तब तक तो पता नहीं रोड तो बनेगी नहीं बनेगी, हमारी लाइफ कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। आप ये तो नहीं कह सकते कि जब रोड लाइट लगी हुई होगी तब से ही मैं ट्रैफिक रूल फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। तो दैट इज वन पार्ट दैट इज गोइंग ऑन, मे टेक सम टाइम, मे टेक मोर टाइम, बट आपकी सेफ्टी तो आज से जरूरी है। हाँ जी, आज देखो जेम्स कैम्ब्रिज स्कूल के चेयरमैन साहब वासु साहब ने बड़ा चंगा इनिशिएटिव लिता है, जिसके आज सारे 9, 10 ਤੇ 11, 12 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ट्रैफिक रूल्स जोड़े है आने वाले समय च सारे फॉलो करन, नाल अपने पेरेंट्स नू भी ट्रैफिक रूल फॉलो करने वास्ते मोटिवेट करन ते उन्होंने नाल उस तरीके नाल इस एंटी जड़ा ट्रैफिक वायलेशन जड़ा अपना कैंपेन हैगा उहदे च शामिल करन। नाल जड़ा हैगा सारे बच्चों ने ही असी मोटिवेट किया हैगा ड्रग्स दे किस तरीके नाल किस उन्होंने मोटिवेट किया हैगा, इस तरीके की हैल्दी लाइफ स्टाइल जिवें कि आप स्पोर्ट्स नू मोटिवेट करने वास्ते इवेंट भी कराते रहते हैं तो हैल्दी लाइफ स्टाइल पढ़ाई के नाल वो स्पोर्ट्स वाल खेड़ा वाल वधन उन्होंने नाल जुड़न सो दैट कि वो एक चंगा लाइफ स्टाइल मेनटेन कर सकन तो स्ट्रैस फ्री, क्योंकि बच्चों तुहानूं पता है कि स्टडीज़ का भी काफ़ी प्रेशर रहिंदा हैगा, उहदे बारे भी असी गल भी की है कि नाल उन्होंने मोटिवेट भी किया हैगा कि जिहड़ा प्रेशर हैगा उन्होंने किस तरीके नाल बच्चे रिलीव करके तो जिदा एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करके एट द सेम टाइम एक परसपैक्टिव चेंज करते हुए अपनी पढ़ाई करते हुए वो स्ट्रैस तो फ्री रहते हुए चंगा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बड़ा चंगा इनिशिएटिव हैगा जेम्स स्कूल का, तो मैं बधाई देना चाहूँगा संजीव वासल साहब नूं, चेयरमैन साहब नूं, CEO साहब नूं, राघव जी नूं, नाल साडे SP ऑपरेशन मैडम नवनीत जी ने तो DSP सिटी ने भी ज्वाइन किया हैगा। इन्होंने बच्चों को ट्रैफिक बारे अवेयर किया तो जी साडी एंटी ड्रग कैंपेन हैगी उन्होंने बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 800 तो ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 800 तो ज़्यादा घरों तक आ गल साड़ी जाएगी तो इनू जरूर जड़ा है अपना एक नशा मुक्त पंजाब का जड़ा अपना मोटिव हैगा उन्होंने एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। एक सर ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰ ਜਾਂ दोपहिया वाहन नहीं चला पाऊगा की है जी हाँ, देखो 18 साल तो घट उम्र वाले जोड़े है जिन्होंने आप अंडर एज कह दें हैं ट्रैफिक गाइडलाइंस के हिसाब नाल उन्होंने अलाउड नहीं हैगा कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ड्राइव करना, तो वो अगेंस्ट दी रूल्स हैगा वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जदों भी आप सड़क पर किसी व्हीकल पर ड्राइव करते हुए या राइड करते हुए निकलते हैं तो बड़ा रिस्पोंसिबली बिहेव करना होंदा, अपनी जान की सुरक्षा भी अपने हाथ होंदी, एट द सेम टाइम दूसरों की जान की सुरक्षा भी आप वो देखनी होंदी हैगी। इस तो अलावा भी जो ट्रैफिक नई रेगूलेशनस रूल्स आए हैं उन्होंने बहुत डिटेल जोड़ा है सारी चीज़ दसी गई हैगी, जिहदे विच तुसीं जदों पढ़ोगे एक एक चीज़ बड़ी बारीकी नाल उन्होंने दसी हैगी किस तरीके नाल आपां घर तो बाहर गड्डी च निकलना तो लेन सिस्टम कितना फॉलो करना, इंडीकेटर्स किस तरीके नाल देने, टर्न किदां लेना, एक क्रॉसिंग किदां किस तरीके नाल करनी, उहदे विच जिहड़ा हैगा अपना रेड
किस तरीके नाल क्रॉस करनी हैगी, मतलब ਜਿਹੜਾ ट्रैफिक सिग्नल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਟਰੈਵਲਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜੇਕਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.